Hello everyone, my name is Ankit Verma and you are watching my channel Knowledge Store. In this lecture, we are going to discuss 100 tricky questions on Tom. This is lecture number 4 of this lecture series. The questions will be from acceleration analysis and velocity analysis. So let's start the lecture and discuss the questions. What are the questions? Let me start with the first question. We have discussed already 6 questions in that. We will begin from question number 7 here. Okay, so this is the question. Let me copy it and paste it here. Okay, this is the question. Just a minute. Yes, what is the question say? It says road AB can slide freely along the floor and the inclined plane. This is the inclined plane. At the instant, the velocity at end A is 1.4 meter per second to the left. The velocity of point A is 1.4 meter per second to the left. This is according to the question. What it will ask, determine the angular velocity of the road and the velocity of the end B. We have to find velocity of point B and the angular velocity of this road AB, right? So let me draw the diagram. This is the diagram, this is the axis and this is our plane, right? So this is the plane that is given in the question. How can you calculate this angle? As this perpendicular distance is 300 and this distance is 125, so we can calculate it. Okay, so this angle, as this is 300 mm and this is 125, this angle will be 68 degree almost. And the road AB, this is the road AB, ये रोड दी है AB. क्योंकि ये हमें 500 mm की दी है, so we can also calculate this angle too. Let this angle is theta and this angle is beta. How can you calculate this? This is sine inverse 3 by 5. This is almost 37 degrees. Okay, so I have to draw the diagram now. That this is the road AB. Sorry, this point is B, yeah, and this is A. Okay, so this velocity is 1.4 meter per second. Okay, so velocity of B will be along this axis. So this is velocity of point B. How will the road rotate? This will rotate clockwise. Okay, so if any road rotate this, how can you calculate? If its angular velocity, you want to find out the angular velocity, suppose. So how can you calculate? Suppose this is AB, so velocity of B with respect to A equals to R to omega. This is how can you calculate the value of angular velocity? So what we will do, we make a diagram, a triangular one, because 3 forces are or 3 vectors are given. So this is the velocity A. Okay, okay, and सीधा सीधा बना देता हूँ मैं इसको और एक काम करता हूँ. वेलोसिटी ऑफ B इस लाइन के अबाउट होगी और जो अकॉर्डिंग टू वेक्टर, व्हाट इज दिस? दिस इज
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा ही है, दिस इज ओ पॉइंट, ठीक है। सो ये एंगल हमारा कितना रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा हमारा, क्योंकि ध्यान से देखना यार अब इसको, है ना, ये वाला एंगल हमने निकाला है 68 डिग्री निकाला, तो ये वाला एंगल भी हमारा 68 डिग्री हो जाएगा। इस वाले एंगल को मान लेता हूँ फाई में, ये वाला एंगल इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये निकाल दिया तो आपका काम हो गया, क्योंकि फाई भी फिर 180 में से दोनों एंगल घटा के हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मैंने ऐसे बनाया है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस फिगर, सो हमें ये वाला एंगल चाहिए, है ना, यही तो एंगल चाहिए, सो हमें 90 में से घटा देंगे, सो दिस विल बी 53 डिग्री एंगल, राइट। सो हमने क्या करना है, ये वाली क्या है वेलोसिटी ऑफ बी, हमने बस यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगा देना है, साइन लॉ लगा देना है। वेलोसिटी ऑफ बी के नीचे क्या आएगा, साइन 53 डिग्री आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए के नीचे साइन फाई आएगा, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आप निकाल लेना, 180 डिग्री में से 53 भी घटाना है और 68 डिग्री भी घटाना है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के आगे कौन सा एंगल आएगा, साइन 68 डिग्री, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ ए गिवन है, तो यहाँ से आप वी बी और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल दोगे। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आने का फ़ायदा क्या रहेगा, आप आर से डिवाइड, आर कितना है इसका, किस रेडियस के अबाउट ये घूम रही है, 500 mm में 0.5 मीटर, तो यहाँ से एंगुलर स्पीड भी आपकी आ जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पूछा है इसने, वो यहाँ से आ जाएगा। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का आएगा, आपको इस तरीके से इसको अपनाना है। इस क्वेश्चन को आप इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से भी कर सकते थे, नो डाउट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते, तो इसका ऐसे आएगा और ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, जहाँ पर वो पॉइंट मैच कर रहा था उस पॉइंट को आप सी मान सकते हो, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। मैंने वेक्टर वाले तरीके से कराया, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से भी मैं अगला एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, बट मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर में आपको एनालिटिकल तरीके से करके दिखाऊँ, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आप इसको आई जे के कैप मेथड से भी कर सकते, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया था, जो पिछले लेक्चर में कराया था, राइट। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी ऑफ एन ऑटोमोबाइल ट्रैवल टू द राइट एट अ कांस्टेंट स्पीड, इस स्पीड से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, इसने वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 48, मैं इसको मीटर पर सेकंड मान ले रहा हूँ माइल को, और इसको मैं सेंटीमीटर मान लेता हूँ, 22 सेंटीमीटर, तो 220 mm हो सकता है जो डायमीटर दिया है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 110 mm, मैंने खुद मान लिया है, तो 0.11 मीटर आ जाएगा इसका जो रेडियस है, ए दैट इज़ ए। अब इसने अलग अलग पॉइंट पे हमारे से वेलोसिटीज़ पूछी है, बी सी डी ई। यार अब देखो, मैं इसको कई सारे मेथड, इंस्टेंटेनियस सेंटर, इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मान के भी मैं कर सकता हूँ, मैं इसको वेक्टर मेथड से भी कर सकता हूँ, मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताता हूँ। सपोज आपको वेलोसिटी पॉइंट बी में निकाल के दिखाता हूँ, तो आपको ए की वेलोसिटी तो पता है ना, दैट इज़ टुवर्ड्स राइट, एंड हाउ मच, 48 मीटर पर सेकेंड। सो हमें इतना तो पता है कि पॉइंट बी यहाँ पर है, तो इसके मतलब इसके टेंजेंशियल ही रहेगी ये वेलोसिटी, इतना तो आइडिया है ही। सो दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे वेलोसिटी पॉइंट ए पता है, मुझे ना वेलोसिटी पॉइंट बी बताओ, और ये कुछ दूरी भी है इसके बीच में, कैसे निकलता है ऐसा क्वेश्चन, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी मुझको पूछा है इसने, राइट। अच्छा एक बात मैं आपको इसमें बता दूँ, प्योर रोलिंग आपको मानना पड़ेगा, दिया नहीं है वैसे, प्योर रोलिंग की कंडीशन आपको माननी पड़ेगी कि बॉडी प्योर रोल कर रही है विदाउट स्लाइडिंग। तो इस कंडीशन के लिए आपको अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मतलब ओमेगा निकालना है, या बेसिकली आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या ए पॉइंट की वेलोसिटी दी है, दैट इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर, जितना इसका रेडियस है। ये है कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। अगर आपको ए पॉइंट ओमेगा निकालना हो इस बॉडी का, ओमेगा निकालने का फ़ायदा क्या रहेगा अब आपको पता लगेगा। जैसे सपोज करो ओमेगा की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी ये आपने 48 दी और रेडियस 0.11 है,
तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लेना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मान लो बी पूछता है, क्योंकि रेडियस या कह लो ई की पूछ ले, वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए, या यहाँ पर कोई पॉइंट होता, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू, चाहे डी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट, चाहिए इसकी बात कर लेता डी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि बॉडी प्योर रोल कर रही है और सेंटर के अबाउट अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ए सेंटर के हिसाब से निकाल रहे हो, क्योंकि रेडियस सेंटर से लेके दूरी है, सो बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो, चाहे डी विद रिस्पेक्ट टू ए, चाहे ई विद रिस्पेक्ट टू ए हो, इसकी वैल्यू आर इंटू ओमेगा होगी। सो हमारा ये बहुत ही मेजर काम हो जाएगा कि आपको पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए या डी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। पता लगेगा क्यों, जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जैसे मान लो आपसे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पूछता है वेक्टर में, तो आप क्या बताओगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए भाई और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ऐसे ही सीखा है हमने, ठीक है। तो अब बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो चाहिए ही कि भाई इस ए पॉइंट के अबाउट बता दो मेरे को, ठीक है, या ई की ए के अबाउट बताओ, क्योंकि सबके सब हमने क्या मान लिया, प्योर रोलिंग की कंडीशन मान लिया हमने। इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से नहीं करा कि भाई सी को इंस्टेंटेनियस सेंटर में, उस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, नो डाउट, वो कहोगे वो भी बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा ये आप कमेंट करके बताना, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब देखो, जैसे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पूछता है, देखिए जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी वो क्या रहेगा, वो किधर की साइड बनाएंगे, और हम किधर की साइड है, राइट साइड है, जैसे मैंने बताया। कितनी वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, डायरेक्शन तो हमें पता है क्योंकि रोटेट कर राइट साइड ही होएगी, बट क्यों होएगी, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए पता है, ठीक है, और बी विद रिस्पेक्ट टू ए पता है, जो कि वो भी राइट साइड है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी से आप ए आओगे तो कैसे, मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू ए से बी की तरफ कैसे जाओगे आप, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, अगर आप इसको वाई प्लेन और इसको एक्स मानते हो, मेरी बात समझो, सो ओमेगा को आप के वेक्टर में लिख सकते हो, तो समझ आ रही होगी नहीं बात। और क्या लोगे, बॉडी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो माइनस ओमेगा के लिखेंगे इसको, इतना आपको आता ही होगा ये बात तो, ठीक है, राइट। तो और उसके बाद क्या करेंगे, ओमेगा के आ गया, और उसके बाद आर की वैल्यू, आर वेक्टर को क्या लिखोगे, ए से बी की तरफ आप कैसे जाओगे, जब आपको ऊपर की साइड जाना है, कितना जे में जाओगे, कितना, जितना इसका रेडियस है, कितना 0.11 जे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना। और आई, ये क्या ट्रिक सिखाई थी मैंने पिछले लेक्चर में, अगर के से जे की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा आई, ठीक है, आई आई है ना, माइनस ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो तो आई की डायरेक्शन कौन सी है, राइट साइड है, ये मेरी बात समझे अब। सो इस वजह से वेलोसिटी ऑफ जो बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो भी राइट साइड आ रही है, प्लस, ओके। तभी तो जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो हमने वैल्यू निकाली है वो भी राइट साइड आएगी, और कितनी वैल्यू आएगी वो मैं आपको ऑलरेडी निकाल चुका हूँ वहाँ पर, जो सीधा डिवाइड करके v विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ओमेगा आपने निकाल ही दिया था, आर से मल्टीप्लाई कर, सेम आएगी वैल्यूज़। सो मेरा कहने का मतलब ये है, वेलोसिटी ऑफ ए भी राइट साइड है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी राइट साइड है, दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में। वेक्टर में क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर तो वेक्टर भी लिखे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में दोनों की वैल्यू जुड़ जाएगी, जो भी ये दोनों की वैल्यू आएगी। क्लियर आ गई, ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। बहुत आराम आराम से मैं इसको बता रहा हूँ। अब मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी पूछता है, तो क्या सिखाया मैंने आपको, वेलोसिटी ऑफ ए, क्योंकि हमने इसी के अबाउट निकाला है, और वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्लियर है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ऐसे ही आएगी, पर्टिकुलर एंगल पे आएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आया था वही सेम मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, ये तो मैग्नीट्यूड तो सेम निकाल ही चुके हैं। सो ये वाली वैल्यू आएगी, अभी मेरे को डायरेक्शन नहीं पता मान लो, ठीक है, नहीं पता। तो आपने करना क्या है, इसके लिए क्या ट्रिक है, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए आपको मतलब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, तो इसका पहले एन वेक्टर अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप लोग, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ए तो पता ही है, ये तो आई कैप में रहेगी, आई कैप में रहेगी, इसकी डायरेक्शन इधर की साइड ही रहेगी ऐसे। अब मान लो आपको वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए को वेक्टर में लिखना है, तो क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको, किस तरीके से लिख सकते हो डी विद रिस्पेक्ट टू ए, कैसे, v कस टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। सो कैसे लिखोगे, ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, वो तो क्लॉकवाइज ही आ रही है ना, और मतलब माइनस ओमेगा के, क्योंकि आपका जो थंब है अंगूठा नीचे आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, अच्छा ये देखो जरा आप इसको, ठीक है, आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हो आप, आपने वेलोसिटी ऑफ ए से डी की तरफ जाना है, तो एक्स में आपने कितना गए, नेगेटिव में जाओगे इतनी वैल्यू, और वाई में जाओगे प्लस, क्योंकि आपको इसका 0.11 ये पता है और ये 30 डिग्री पता है, तो 0.11 कॉस ये कितना आएगा, साइन वाला आएगा, साइन 30 माइनस का आएगा आई कैप, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू आपने वाई में कितना चले, प्लस में चलोगे ऊपर की साइड, ए से डी की तरफ जाना है ना, क्योंकि बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमें उल्टा चलना होता है, ये ट्रिक सिखाई, ए से डी की तरफ चलो 0.11 cos 30 जे कैप, तो जब, और यहाँ लिखना है आई जे के, आई से जे करोगे तो प्लस के आएगा, ऐसे ही करते हैं। तो अब आपने जैसे मान लो ये तो आपने क्या निकाला है, आर वेक्टर निकाला है, और आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, इनटू यहाँ पर ओमेगा से, ओमेगा की वैल्यू आपने कितनी निकाली, वहाँ पर जो भी वैल्यू निकाली थी कैलकुलेट करके मान लो 80 निकाली थी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, और इनटू क्या लिखोगे, के वेक्टर लिखोगे माइनस का। अब इस वाले फॉर्मूले में लगा देना है के इंटू आई, प्लस का जे लिखना है, तो इस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस का जे के टर्म में आएगा कुछ वैल्यू, और ये जे, और यहाँ पर आई के टर्म्स में आएगा, सो वो आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी ना, तो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वैसे ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इसका, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, तो आप एक एंगल के तौर पे बता सकते हो कि भाई कितने एंगल पे बन रहा है। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ये कितने एंगल पे बन रहा है, जो कि यहाँ पर क्योंकि 30 डिग्री दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे ये हमें पता है कितने एंगल पे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये कितना है, 30 डिग्री है, तो वैसे भी दिख रहा है ये, यार ये वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट, ये शॉर्टकट है इसका तरीका, ये इस एंगल पे बन रहा है, कितने पे बन रहा है, 30 डिग्री पे बन रहा है, और वेलोसिटी ऑफ ए कैसे बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है। क्या आप इसका वेक्टर नहीं निकाल सकते, पैरेललोग्राम को लगा के, बिल्कुल निकाल सकते हो, 2va इंटू वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए cos 30 डिग्री निकाल सकते हैं ना। तो हम इसका जो रिजल्टेंट एक तरह से आया वो निकाला हमने, जो वैल्यू हमारी आई है यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी। क्लियर है जी, तो यहाँ से आप ये एंगल निकाल सकते हो, यहाँ पर आए जैसे मान लो, ठीक है। अब मान लो आपको इसका एंगल चाहिए, वेलोसिटी ऑफ डी आ गया आपका, लेकिन पूरा मतलब एंगल चाहिए, तो कितना होगा ये वाला एंगल, वो भी हम निकाल सकते हैं। क्या हो सकता है, क्यू, क्या निकाला था हमने, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा tan अल्फा इक्वल्स टू, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, इसको क्यू मान लो, इसको पी मान लो, वही बेसिक्स। सो यहाँ गलतियाँ होती हैं लोगों से, और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। सबसे पहले आप वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी भी निकाल सकते हो, आपका मन करे, क्या दिक्कत है, वो भी इधर की साइड ही आएगी, सेम वही जो बी की तरफ जैसे आपने निकाला।
अब जैसे मान लो वेलोसिटी पॉइंट ई पूछता है, इसको भी देख लो, ये इधर की साइड रहेगी, है ना। मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके थे, आई थिंक मान लो इसका वैल्यू 80 आई थी। जो बार बार बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर की अभी कमी है। बी विद रिस्पेक्ट टू ए आई थी, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए हमारी मान लो 80 आई। वो ऐसे पढ़ रही है, और ये कैसे आई है वेलोसिटी ऑफ ए, वो ऐसे आई है, ठीक है। तो वेक्टर लगा लो चाहे डी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला जो वेक्टर आएगा इसको जो जोड़ने वाला होता है, बिकॉज वी आर एडिंग द वेक्टर, सो इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ डी, है ना। ऐसे ही करते हैं। तो ये हमने एक तरह से इसका अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि ये भी वैल्यू आएगी, हमें पता लग गया है। ये वाली वैल्यू भी, इसका बस स्क्वायर करके अंडर रूट जोड़ के अंडर रूट लगा देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। और कितने एंगल पे लगेगी वो, 45 डिग्री पे यहाँ से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ये ई विद रिस्पेक्ट टू ए तो ऐसी आई है, सही है, लेकिन और जो ए की है वो ऐसे आई है, तो जो नेट वेलोसिटी आई है वो वेलोसिटी ऑफ ई ऐसे आएगी 45 डिग्री पे। इसीलिए मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ जो डी, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए तो ये आई है ना, और ए वाली वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट है यहाँ से ऐसे आएगी, पर्टिकुलर एंगल पे आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अब कोई भी किसी भी पॉइंट पे, और गेट के आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे। आप इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से भी कर सकते हो, बट ये सबसे मुझे शानदार तरीका लगता है, ठीक है। आगे आएंगे क्वेश्चन, तो मैं आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उससे नहीं हो सकता, उससे भी हो सकता है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। ज़्यादा तो इसके क्वेश्चंस नहीं हो पाते क्योंकि फिर समय ज़्यादा लगता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसने क्या कहा, नोइंग दैट द इंस्टेंट शोन द वेलोसिटी ऑफ द कॉलर ए इज इतना 900 mm पर सेकेंड टू द लेफ्ट। जो कॉलर ए की जो वेलोसिटी है वो 0.9 मीटर पर सेकेंड है इधर की साइड। इसने क्या बोला, ए डी बी की एंगुलर स्पीड बताओ कितनी होगी, और इस पॉइंट बी की वेलोसिटी बताओ। नोइंग एट द इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी डी, अब आपको डी की एंगुलर स्पीड अगर वो दे दे, तो इसने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ द कॉलर ए बताओ एंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी बताओ। चलो बी दोनों पार्ट करने की कोशिश करेंगे, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चन बहुत दिए गए हैं, तो मेरे को लगा कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनाया जाए, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग दो पार्ट, मतलब दो हिस्सों में देखते हैं। एक तो ये वाला हिस्सा है जो है ना, इसके हेल्प से मैं वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लूँगा। बट सबसे पहले तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को आसान करता हूँ ना, कि एक ये वेलोसिटी आ रही है और ये ए डी है और ये रोटेट कर रही है, बस इतना ही देखते हैं अभी हम, ठीक है। देखो कैसे रहेगा, जैसे कि मेरे को पता है वेलोसिटी ऑफ जो ए है, इसने लेफ़्ट साइड में दी है, कितनी दी है, 900 मीटर, 0.9 आई कैप लगा दो, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी की बात करता हूँ, क्योंकि ये वेलोसिटी गिवन है ए की। अगर मैं इसके हेल्प से अगर डी की वेलोसिटी निकालना चाहूँ, तो पहले तो मेरे को इसकी एंगुलर स्पीड पता होनी चाहिए, या ऐसा कह लो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए पता होना चाहिए। मतलब ए से डी की तरफ जाना है। ए से डी कैसे जाओगे, जब आपको एक्स में इतना चलोगे माइनस का, और वाई में भी माइनस का चलोगे, कितना 80, और नीचे कितना 150, तो 0.08 आई कैप माइनस का, माइनस के 0.15 जे कैप। ये तो रहा मेरा आर वेक्टर, इसको मैं बोल दूंगा आर डी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्यों निकाला मैंने इसको,
क्योंकि अगर मुझे को AD की या ये जो पूरी रोड है AB AD इसकी एंगुलर स्पीड चाहिए ADB की, तो क्या होगा? ADB की अगर मेरे को, मैं यहाँ बताता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपको निकालना हो, मान लो वेलोसिटी ऑफ D निकालना है विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी? आपको इसकी एंगुलर स्पीड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ RD विद रिस्पेक्ट टू A, यही पढ़ा है हमने, एंगुलर स्पीड ऑफ द रोड, यही है। अब ये भी हमने निकाल दिया। अच्छा, ये हम x और y में प्लेन ले रहे, तो ये ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? अब ये रोड कैसे रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देखो, आपका अंगूठा ऊपर की साइड आएगा तो प्लस के लेंगे, ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू तो चलो अभी नहीं पता, तो ओमेगा ही मान लेते हैं इसको। ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर में निकाल चुका हूँ इसका, डी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया है, ठीक है। ये वैल्यू होगी हमारी। अब एक बात देखो, जो वेलोसिटी ऑफ डी है, वेलोसिटी ऑफ डी अगर आपको निकालना हो, वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, है ना, क्योंकि ये गिवन है और यही चाहिए होता, फिर इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चाहिए होती, यही ट्रिक है इसकी, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ ए पता है, डी विद रिस्पेक्ट टू ए भी पता है, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगी वैल्यू? करो इसको, वेलोसिटी ऑफ डी को ए की वेक्टर में है, सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं हम तो आई जे कैप के हिसाब से, क्योंकि ये आई जे कैप में दोनों वैल्यूज़ दी हैं। तो आई वालों को एक साथ लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, 0.9 प्लस 0.08 ओमेगा इंटू आई कैप माइनस की पॉइंट जे कैप, वेलोसिटी ऑफ डी आ गया। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इस चीज़ में, क्योंकि ये जो डी पॉइंट है, जो ये डी पॉइंट है, अब क्योंकि ये डी रोड यहाँ से इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो जो डी फिक्स रहेगा वो इधर की साइड कोई भी वेलोसिटी इसकी नहीं रहेगी। कहाँ रहेगी? सिर्फ जे कंपोनेंट में रहेगी इसकी वेलोसिटी। सोच के देखो, क्योंकि ये अब जैसे ये रोड इस पे आएगी तो ये क्या करेगी? रोटेट करेगी, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट इधर की साइड आएगा, लेकिन क्योंकि डी यहाँ पर फिक्स है ये वैल्यू, तो ये इसको एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगी डी पॉइंट को। तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। यहाँ से मेरा ओमेगा आ जाएगा, है ना। इन दोनों को जब बराबर करेंगे, इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, तो यहाँ से मेरी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, एक चीज़ गड़बड़ थी यहाँ पर कि जो ये ओमेगा के क्रॉस लगाया ना, तो ये के क्रॉस में मैं इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिखूँगा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, सॉरी, क्योंकि ओमेगा क्रॉस, इसका क्या ट्रिक है? आई जे के, अब के क्रॉस आई कर रहे हो आप तो प्लस का जे आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, यहाँ गलतियाँ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। और के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा आई वाला। तो कहाँ गलतियाँ हुई हैं? तो जब आप इसमें जोड़ोगे ए वाले कंपोनेंट को, आई वाला ये है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो देखो, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्या वैल्यू आएगी हमारी? तो यहाँ पर ये आई वाला है, और कहाँ पर है? आई ये वाला है, ठीक है ना जी। तो माइनस के 0.9 प्लस के 0.15 डब्लू आई कैप माइनस के 0.08 डब्लू जे कैप, यही है।
तो इसकी वैल्यू को 0 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके हमारी 0.9/0.15 आ गया 6, यस 6 रेडियन, सही भी लग रहा है नाम से भी, 6 रेडियन पर सेकेंड आ गई हमारी वैल्यू। और रोटेट कैसी कर रही है, ये प्लस में आई है देखो वैल्यू, सो दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, इससे भी पता लग जाता है हमारे को। अब जैसे मान लो, अब देखो सीखो इस चीज़ से कि अगर आपसे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पूछता है, डायरेक्शन नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें, लेकिन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए पता है मेरे को, ठीक है, इसकी रॉड की एक तरह से हमें ओमेगा भी पता लग गया है, पता लग गया क्या है, ओमेगा इंटू के क्रॉस ही लिखेंगे इसको। अब देखो इस चीज़ को आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे करोगे, और जैसे मैं इस वाले पार्ट को ही कर रहा हूँ, जैसे ओमेगा तो निकाल दिया, वेलोसिटी पॉइंट बी चाहिए, सीखो इसको बात को, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये तो गिवन है, चलो ठीक है, बट ये कैसे आएगा, आपको इसके लिए आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ, ठीक है, और इनटू क्रॉस प्रोडक्ट किससे करोगे, इसके ओमेगा से करोगे, ठीक है। तो आर बी विद रिस्पेक्ट टू मतलब ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी कैसे जाओगे, अच्छा बताओ, आपने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए से बी कैसे जाओगे, आपने यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, एक्स में इतना चलना पड़ेगा, ठीक है, ओके, और वाई में कितना चलना पड़ेगा, वो भी नेगेटिव में चलना पड़ेगा। अच्छा ये नेगेटिव में कितना आएगा, ये 210 आ गया, ये 80 है, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, ये सोचो जरा। इसमें आप कौन सी थ्योरम लगा सकते हो, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए, दिस अपॉन दिस है ना, इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। ये वाली वैल्यू मतलब हमें ये निकालनी है, थीटा भी मतलब अगर हमें गिवन है ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ हम इसमें निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना, ये एंगल सेम ही तो है ना, सेम है, ये एंगल सेम है, मेरे को तो बस ये चाहिए, यहाँ से मैंने ये एंगल निकाल लिया, यही एंगल सेम होगा, ये वाली रोड पर है तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ से, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो टोटल आर जो लोगे आप इधर की साइड लोगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, आई और जे में आ जाएगा, क्लियर है। तो आर वेक्टर मैं बताऊँ उसको मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर आसान करने के लिए मान लेते हैं कि 120 आ गया, मान लेते हैं ऐसे ही समझने की, याद रखो वैसे ही, तो माइनस के 120 आई कैप माइनस के 210 जे कैप, और ओमेगा क्या है आपका, के क्रॉस। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे के और आई का, उसी तरीके से आई जे के लिखो, और के से आई करोगे तो प्लस जे आएगा, इस तरीके से आप लोग इसमें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाए तो उसके बाद कुछ नहीं रह जाता इसमें, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए तो हमें पता ही है, माइनस के 0.9 आई कैप है वो, है ना, तो सीधा सीधा जब हम इनको जोड़ते हैं ना इस तरह के, सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, कहने का मतलब अगर आई जे के लिख देते हो फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो फिर हमें वो वेक्टर नहीं लगाना पड़ता, पैरेललोग्राम लोग, ठीक है, आई जे के हेल्प से हम लोग इस तरीके से निकाल, जैसे मान लो लास्ट में वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे आ जाए 300 आई कैप माइनस 400 जे कैप ऐसे आ जाए, तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, देखो आप इसका एंगल भी निकाल सकते हो, कितने एंगल पे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स करके। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ये कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बस मैं हिंट दूंगा ऑब्वियसली, जो क्वेश्चन नंबर इसी का ही हम मान लेते हैं 8 9, हमने कौन सा करा है 6 कर दिए थे, 7 8 ये 9 था और ये 10वां क्वेश्चन। सो देखो इसमें क्या है, अब आपको एंगुलर स्पीड डी की दे दी है, इसकी ध्यान से देखिएगा, डी की हमें दे दी है एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा, है ना जी, क्लॉकवाइज तो माइनस में आएगा, ओके। सो वेलोसिटी, अच्छा अब मान लो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट आपको डी की दे दी है, ई तो फिक्स है हमारा, कैसे निकालते हैं उसके लिए,
अब वेलोसिटी ऑफ डी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। कितनी आएगी, इनकी ओमेगा से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट किसी पंगे के। ऑब्वियसली हमें पता है कि इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, वेलोसिटी ऑफ डी, जैसे हमने पहले भी निकाला कि इसका आई कंपोनेंट 0 है। सो वेलोसिटी ऑफ डी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है। ये डी कितना है, 120 है, 0.10, और ओमेगा 2.4 दिया है, 120 2.4, एक मिनट, 120 2.4 288, हाँ 288 mm पर सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ डी आ जाएगी हमारी यहाँ पर ऊपर की साइड। ऊपर की साइड का क्या मतलब होता है, जे में लिख दो भाई, क्योंकि आई जे के में सही रहता है ये करना, मैंने देख लिया है। ठीक है, अब मान लो आपको ए के हेल्प, अब हमें करना क्या है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी थी ना। वेलोसिटी ऑफ ए निकालने का क्या तरीका है, अच्छा देखो, वेलोसिटी ऑफ डी क्योंकि हमें पता चल जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ क्या रहेगा अब, ए विद रिस्पेक्ट टू डी। अब डी विद रिस्पेक्ट टू जिसका निकालते हैं उसके हेल्प से, तो मतलब डी से ए की तरफ जाना है। डी से ए की तरफ जाने के लिए आपको एक्स में और वाई में दोनों में प्लस में जाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप। अगर आपको ये सब बेसिक्स नहीं है तो पिछले लेक्चर मैंने इसीलिए 2 थ्योरी वाले कराए इस लेक्चर सीरीज़ के, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा जो ए डी की रहेगी वो क्या आ रही है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सो प्लस के लेंगे हम। ओमेगा ए डी हमें चाहिए ना यहाँ पर, है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए चाहिए ना हमें। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ जो हमारे पास है डी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए, एक मिनट, हाँ ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ ए किधर की साइड लोगे, अच्छा आप अब बॉडी, अब ये घूम रहा है हमारा, सो दिस विल मूव टुवर्ड्स राइट। ठीक है, और राइट की साइड मूव करेगी क्योंकि इधर की साइड उस इंस्टेंट पे, तो हम वेलोसिटी ऑफ ए इंटू आई कैप लेंगे। क्लियर है, सेम वही क्वेश्चन है यार, सेम डिट्टो। ओके, अच्छा दूसरी बात क्या है इसके अंदर, जो आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर ए वाली जो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ये जो हमारा आएगा, ए और डी दोनों के टर्म्स में आएगा, ओमेगा के ए डी के टर्म, क्योंकि हमें यहाँ ओमेगा तो पता नहीं है। तो एक बात याद रखना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये जे में कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, तो जो भी जे कैप के साथ वैल्यू आएगी उसको हम 0 के बराबर रख देंगे, उससे हमारा ये ओमेगा ए डी आ जाएगा। ये मैंने आपको अभी हिंट दे दिया, उससे भी ये आ जाएगा। क्लियर, अब जब आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी पता लग जाएगी या ए की पता लग जाएगी, वैसे तो अगर आपको मान लो डी की पता लग गई या ए की पता लग गई, तो ए की पता लगने से आप बी की भी निकाल सकते हो, सेम उसी तरीके से, वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेम उसी तरीके से। सेम क्वेश्चन है ये, बस इसने घुमा दिया, लेकिन सेम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में जो एस की जो बिट्स एंड बाइट है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ऐसे में एक्सेलरेशन के भी, अभी मैंने एक्सेलरेशन को छुआ नहीं है अभी भी लेक्चर में, ये मैंने सिर्फ वेलोसिटी वाले क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे, राइट, 5-6 क्वेश्चन हम एक्सेलरेशन के करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से होमवर्क रहेगा। ये मैंने पूरा प्रॉपर आपको हिंट दे दिया कि जो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।